चालू कब होगी? We'll start within 5 minutes. Let others also join.
Dear students, please stop annotating. This is not your drawing class. Please stop annotating. गाइज प्लीज ये सब बंद कीजिए अगर आपको लिटरली वांट कि कुछ सेशन से आपको यहाँ पे कुछ मिले, ठीक है। एनोटेटिंग करना बिल्कुल बंद कीजिए। जिस काम से आए हैं वो काम कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज यही होगा, मेरे को आप सबको एक एक करके एग्जिट करना पड़ेगा सेशन से, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Good evening, everyone. Am I clearly visible and audible to all of you? Yes, ma'am. You are clearly. Okay, okay. Are we good to go to start the session? Yes, ma'am. Okay, 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 okay. Just wait for a moment. Kindly confirm. Is the screen clearly visible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Good evening, everyone. This is Prachi, and today I welcome you all into this session. In this particular session, today we are going to know what UPSC is all about, and above all, what is Prarambh, and how Prarambh is going to help you in accomplishing this goal of yours to crack UPSC. Fine? Okay, okay. So shall we move forward? Okay, okay, fine. Guys, please stop annotating. This is not your drawing class. This is just a session, and all of you, if you please behave like a grown-up and stop annotating. Okay. So first of all, let me introduce Prarambh. Prarambh is a 3-year program for all those students who wants to prepare for UPSC, but they want to prepare it along with their college preparation. Okay. So in this Prarambh, we are going to look about the various features of this particular batch and how this batch can help you in preparing well when it comes to UPSC by understanding the demand of this particular exam and what all we offer you in this batch. Fine. So let's move forward. So what does PWOLIIS have for you? First of all, we have designed this course in such a way that the 3 years program, the first year, first of all, we are going to focus upon the foundation. Okay. So in the very first year, what we are going to teach you is NCERT. अब आपका क्वेश्चन होगा मैम NCERT तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं और NCERT हम अपने स्कूल से भी पढ़ते आते हैं. Then what's the difference? So let me tell you the difference is when it comes to reading NCERT, what we are going to do in this batch, we will read only those portions of NCERT which are important from the UPSC's point of view or the parts which follow the curriculum of UPSC. Abhi hal filhal mein on the 25th of May, UPSC conducted its prelims exam. So what is the key takeaways from that exam? Though the commission is still asking questions from the very basic, but for that, what is required for all of you to understand the basics from depth, and the journey starts from NCERT itself. But keeping into mind the curriculum of UPSC and the kind of questions UPSC is asking repetitively. Okay. And when it comes to UPSC, reading is only one part of this journey. Next part is how do you retain that and how well you practice. So right from the day one, when we are going to start NCERT, right now in your batch, I guess it's bridge course is going on. Kindly confirm first. Any one of you? I guess bridge course is going on in your batch. Okay, 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 okay. Fine. Okay. So what we are going to do as we are going to proceed with this batch of yours post 18th of June, when bridge course is going to end, we are going to introduce 2 subjects.
And what is important for you that you need to attend the classes. It depends upon you whether you want to attend in live session or you want to watch a recorded one. Along with the classes, right from the day one, we keep on posting questions so that you understood how well you understood the concepts. Okay. So we are in the process of uploading 5 MCQs on daily basis and 1 daily mains practice question. Okay. So UPSC is not merely about बहुत सारी book लेकर पढ़ना, ठीक है? That is not what UPSC is all about. UPSC is not all about merely आपको surface से ऊपर से पढ़ना और सिर्फ practice करना. It is all about you need to understand the demand of this examination. You need to understand the depth with which the UPSC is asking the question, and keeping all this into your mind, what do you need to do? You need to prepare accordingly. So in the very first year, we will focus upon building in a base जितना भी मजबूत होगा ऊपर आप उसमें और अच्छे तरीके से मेहनत कर पाएंगे. We are going to focus upon that. Now, moving forward, in the second year, what we are going to do? We are going to introduce advanced curriculum. Many of you are aware about M. Lakshmikant. बहुत से लोग से अगर ये पूछा जाता है कि आपको पॉलिटी पढ़नी है, they are in the habit of saying हाँ M. Lakshmikant पढ़ लेंगे और हो जाएगा. हाँ हो जाएगा. But we should be in a condition to understand उस बुक का जो लीगल लैंग्वेज है उसको डिकोड करना, एग्जाम स्पेसिफिक क्या है वो पढ़ना. 800 पेजेस की पूरी बुक रेलेवेंट नहीं है. एडवांस करिकुलम भी आपको तभी समझ में आएगा जब आपका यहाँ पे बेस क्लियर हो जाएगा. ठीक है. वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन, जैसे आपका एनसीईआरटी जब आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा हर सब्जेक्ट के लिए, जब आपका ये पर्टिकुलर ईयर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, दो आपको डेली 5 DPPs, 5 डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक डेली मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाता है. उसी के बेसिस पे आपका वीकली टेस्ट होता है, सो दैट आप पढ़े नहीं, पढ़ने के साथ साथ यू नीड टू एनालाइज योरसेल्फ. Where do you stand in this preparation of yours? And for guys, please stop annotating. Where do you stand in this preparation of yours? And along with that, जब आपका एक semester खत्म हो जाएगा, we are going to conduct the semester exam so that it becomes easy for you to analyze कि आपने अभी basic कितना समझा है और advanced curriculum पे जाने से पहले अभी आपको basics में और कहाँ मेहनत करने की जरूरत है. I hope I have made myself very clear in the very first year of and the very first year of yours is very much clear to you how we will proceed. Can you please tell me? Is this clear for all of you? Vyomi is saying, ma'am, notes. हाँ, notes भी provide किए जाएंगे. After class, we provide daily class notes as well. But I would recommend to all of you that you make notes by yourself. हाँ, कोई एक ऐसा दिन है जहां आपको नहीं समझ में आ रहा है, that you are not in a position to make notes, then you can refer to daily class notes. But what I want to all of you is to make notes on your own. Fine? Okay. Now, moving on to second year. In the second year, we are going to introduce CSET as well. Guys, just give me 1 minute. Just give me 1 minute. I'm so sorry. Am I audible to all of you? Yes, ma'am, you are audible. Okay. Fine. So yes, in the second year, what we are going to do, we are going to introduce CSAT, that is Civil Services Aptitude Test, along with your advanced curriculum. ठीक है. यहाँ पे भी आपका पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन आपका जो मेन और कोर सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा. Sir, can you please remove this, the particular one who is annotating from the last 5 to 10 minutes and creating unnecessary ruckus? So in the second, what I was saying, in the second year, we are going to introduce the advanced curriculum. We'll follow the same pattern. There will be classes. There will be class notes. There will be daily 5 questions, MCQ. 1 daily mains practice question, and apart from that, what we are going to conduct your weekly test and end semester exam as well. Okay, so these 2 years will help you
in understanding what UPSC is all about. They'll help you in understanding the curriculum. They'll shape the course of your preparation as per the demand of UPSC, and more important, all of the above. Preparation सब करेंगे, books सबके लिए वही है, curriculum सबके लिए वही है. It is, you need to understand, ये एक aspirant specific है. You need to analyze your position in this course of preparation, and then you need to prepare accordingly. There are students जिनको एक बार कुछ पढ़ के एक बार में याद हो जाता है, and there are students who need at least 4 or 5 revision just to एक कॉन्सेप्ट को सॉलिडिफाई करने के लिए. तो यहाँ आपको अपनी नीड समझने की जरूरत है. और स्टूडेंट्स के साथ प्रिपरेशन में बहुत बार ऐसा होता है कि आपने प्रिपरेशन तो स्टार्ट करी, लेकिन इन बिटवीन समवेयर यू फील लॉस्ट. बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे कंटेंट को कंसिडर करते हैं, हम ये भी पढ़ें, हम वो भी पढ़ें. यहाँ पे रोल आता है इस जर्नी में आपके मेंटोर्स का. Who are mentors? Those who have faced interview once. Okay. मेंटोरशिप आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, जिसमें आप अपना कोई भी कॉन्सेप्ट, प्रिपरेशन, टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं. ये वो वाला, मैं ये बोलूंगी कि ये वो फेज है आपकी इस जर्नी में. मेंटोर्स की हेल्प लेके दे विल हेल्प यू इन सेलिंग थ्रू दिस जर्नी ऑफ योर्स, एंड दे विल मेक अ रियलिस्टिक प्लान अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू योर इंटेलेक्ट कैपेसिटी. आप किस टाइम पे, देयर आर स्टूडेंट्स हु कैन डिवोट 6 hours फ्रॉम द डे 1 इन दिस जर्नी, एंड देयर आर स्टूडेंट्स हु कैन डिवोट ओनली 4 hours. So what mentors, they are going to design a plan according to your level, according to your available hours, so that you do not feel left out and you prepare according to the demand of this particular examination. I guess यहाँ तक सबको बातें समझ में आ गई होंगी. Dates के लिए you will be getting the Xiaomi, you will be getting the planner after 18 June itself. You don't have to worry. Okay. I guess, okay. It's clear to all of you. Yes, NCERT from class 6 to 12th will be covered. iPad, keeping into mind the demand of this exam and the curriculum of UPSC. Okay, fine. Now comes the third year, which is the final year. आप प्रिपरेशन में पढ़ रहे हैं, आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट एक रिगरस प्रैक्टिस, सो दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम फियर को ओवरकम करना. देयर आर स्टूडेंट्स जिनको देखा जाता है कि दोज हु परफॉर्म रियली वेल, दे हैव प्रिपेयर्ड वेल, लेकिन एग्जाम में जाके वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. एग्जाम फेयर में OMR शीट गलत फिल करके आ जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म. तो आपके एग्जाम फेयर को रिमूव करने के लिए, आपको रियल टाइम एग्जाम फील देने के लिए, व्हाट वी हैव प्लान इन द फाइनल ईयर ऑफ योर्स, दो वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस, and apart from this we are going to introduce rigorous practice and revision. Okay, so what do I understand? That reading may be a part of your journey, reading may be a part of UPSC, but revision is the key to crack UPSC. Revision and practice is the key to crack this exam. So we are going, वो इतने आपको यहाँ पे इतना प्रैक्टिस कराया जाएगा, so that on the exam day you will feel like that मैं ये रोज यही करता हूँ या यही करती हूँ. It's like any other normal day, just so that you counter the best version of yourself with the best version of yourself exam वाले दिन. And at the same time you should come to know कि exam में आपको किस तरीके से अपना mindset लेकर जाना है. अपने साथ साथ एग्जामिनर का mindset समझना बहुत जरूरी है एग्जाम में, कि वो कहाँ से क्वेश्चंस यहाँ पे पिक कर सकता है. ठीक है, वहां पे PYQ का रोल भी है. और प्रैक्टिस में आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप कभी भी इस एग्जाम में व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स टफ क्वेश्चन गलत करके बाहर नहीं होते हैं. आप इस एग्जाम में इजी क्वेश्चंस को गलत करके बाहर होते हैं. तो वो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको आप गलत ना कर पाए, एग्जामिनर के माइंडसेट को समझ पाए, और जो फियर है उसको रिमूव कर पाए. फॉर दैट we have introduced this rigorous practice and revision. I hope I have made myself very clear till now. Okay. I'll take all of your doubts in the end itself. All the Priyash, you are asking about the teachers. They are mentioned in the app itself. The moment you'll get into the description session, you will come to know about your faculty. Fine? Okay.
Now, moving forward. Okay. So, here let me tell you some of the features, essential features, live plus recorded classes. It's up to you whether you can watch live classes or you can watch recorded classes. But mostly college students हैं, there are times जब आप इस time से कभी-कभी align नहीं कर पाते हैं, तो I would recommend you to watch classes in a recorded format. But ऐसा नहीं करना है कि आपको classes skip कर देनी है, वो आपको नहीं करना है, ठीक है? There will be answer writing sessions. अब answer writing UPSC के लिए बहुत जरूरी है. आंसर राइटिंग कैसे करनी है, किस तरीके से एक क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को समझना है, क्वेश्चन की डिमांड को समझना है, एंड विद दिस एग्जिस्टिंग नॉलेज जो आप अभी आगे जाके गेन करेंगे, उसको यूज करके किस तरीके से क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करना है, दैट वी आर गोइंग टू टेल यू. वीकली करंट अफेयर लेक्चर, ये आपके फर्स्ट ईयर से नहीं, सेकेंड ईयर के बाद आपके करंट अफेयर के लेक्चर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा. बिकॉज एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस व्हाट वी वांट, वी जस्ट वांट यू to understand what's UPSC is all about. करंट अफेयर का रोल बाद में है, स्टैटिक पोर्शन पहले आप जितनी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे एंड दैट टू अपने बेसिक्स को जितना स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, करंट अफेयर्स को आप उसी तरीके से समझ पाएंगे. करंट अफेयर्स इज नथिंग लाइक स्टैटिक इन न्यूज. तो जितना अच्छा आप स्टैटिक पोर्शन को समझ पाएंगे, करंट अफेयर्स को समझने में उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा. एंड एज ऑल ऑफ यू आर एमिंग फॉर 2028, तो करंट अफेयर्स आपको 2026 के या तो जनवरी से या 2026 के अप्रैल के आसपास से स्टार्ट करना चाहिए. एज ऑफ नाउ योर फुल फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी, इट्स करिकुलम, ओके, सॉलिडिफाइंग योर बेसिक्स एंड देन analyze your the level of your preparation. Guys, please stop annotating. How many times do I need to tell? Daily MCQ and mains practice and the regular doubt sessions we are going to conduct. And in case of any academic doubt, as I said earlier, you can request a mentor call. And I think you all are very well versed about the mentorship call, how to request. The option is there in the app itself. I guess you all of you are aware about the mentorship, how to request a mentor call. Proper classes will happen after 18th of June. Bridge course lecture planner till 18th of June is available in the notice section under test planner. Okay. Moving forward. Okay. So, when it comes to this batch called Prarambh, this is not going to make you UPSC ready, but at the same time, this will make you industry ready as well. We merely do not focus upon, just let you to cram a particular book. आप सिर्फ book पढ़ ले, book रट ले, वो यहाँ का purpose नहीं है. Apart from this academic session, we do. Students are saying they're having voice issue. Is my voice clear to all of you? Ma'am, yes, ma'am, your voice is clear. I think these guys having some internet issue. Okay. Fine. Okay. We keep on conducting extracurricular activities in the form of sessions. Okay, that is called peer learning sessions. First of all, the focus of peer learning session is to let all of you to develop the communication skills, which is, I say this is a sine qua non for each and every person to have a good communication skill. In this, we give a topic to the students. They record the video with their level of understanding as per the demand of a particular topic. Then the students, they compete among themselves. So what we do, we keep on organizing such sessions so that you do not feel like you are merely gaining the academic knowledge. And UPSC is not all about आप एक room में अपने आप को बंद करके 16 घंटे के लिए पढ़ेंगे. That is not UPSC is all about. That's the biggest myth about this preparation. Okay. Apart from this, on Saturdays, what we do, organize, we conduct the skills classes, जहाँ पे आपको English speaking skills के साथ साथ PowerPoint, and there are other few things like data, how to analyze the data and how to work upon the spreadsheets. We are going to take care about that as well. So it is not like that कि आपका सिर्फ यहाँ पे आपको एकेडमिक नॉलेज दी जाएगी. एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ आपकी हार्ड स्किल्स और आपकी सॉफ्ट स्किल्स पे भी फोकस किया जाएगा. नाउ इट्स अप टू यू हाउ एक्टिवली यू एंगेज योरसेल्फ
So as you have ample amount of time, आपने बहुत पहले ही अपनी preparation start कर दी है. So what do I want from all of you? That you understood if you have ample amount of time, you are going to utilize it effectively by engaging yourself in both the academic front and as well as the extracurricular front, so that it will help you in shaping the personality of yours and which will further help you in becoming the best version of yourself. I hope I have made myself very clear. Okay. Okay. Those who are saying that whether they can attempt 2027, you should be 21. Your age should be 21 as of 1st of August 2021. Now you can calculate on your own. Moving forward. Okay. There is a myth among the students that ma'am college के साथ हो पाएगा क्या? College के साथ college की preparation यहाँ पे hamper तो नहीं हो जाएगी. There are different doubts चलते रहते हैं दिमाग में. So she is the finest example. She started preparing in the last year of her, BTech, and in the very first attempt, she secured AIR rank 5th. So what are the key takeaways? कि जब आप exam की demand को समझ के यहाँ पे prepare करते हैं, और आप exam की demand के साथ साथ आप target specific preparation करते हैं, that really helps you in sailing through this exam. आपकी प्रिपरेशन कभी भी स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए. आज ये पढ़ रहे हैं, कल वो पढ़ रहे हैं, परसों वो बुक पढ़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं. अगर आप इस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं कॉलेज के साथ, अगर आप 4 आवर्स से ही अपनी स्टार्टिंग आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप 4 आवर्स पे स्टिक करें. ऐसा नहीं होना चाहिए. वन शुड नॉट बी ओवर एंथुजियास्ट इन दिस प्रिपरेशन की पहली बार में हम 24 में से 28 घंटा पढ़ लेंगे. नथिंग लाइक दैट. You need to know how to make a fine balance. और ऐसा भी नहीं है कि आपको कॉलेज की प्रिपरेशन को निग्लेक्ट करना है. Graduation is must, and that too with 33% when it comes to UPSC. So you have to make a fine balance between both of them. ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास कितने अवेलेबल आवर्स हैं, आप मेंटरशिप टीम से बात करके आप अपने लिए एक प्लान फॉर्मुलेट करा सकते हैं. ठीक है, आप टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं. आप टारगेट किस तरीके से, आप मेंटोर से अपने टारगेट, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड मेंटोर अलॉट होता है. ठीक है, हु विल बी देयर ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ योर्स, एंड ही और शी विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर परफॉर्मेंस, एंड ही और शी विल ट्रैक योर परफॉर्मेंस. आप मेंटर से अकाउंटेबल रहे और मेंटर्स भी आपको दे कीप ऑन कनेक्टिंग विद यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आप प्रिपरेशन में क्या कर रहे हैं. ठीक है, तो यूपीएससी की जर्नी इज नॉट ऑल अबाउट कि आपने बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर ली है या आपने कोर्स परचेज कर लिया है. नथिंग लाइक दैट. ठीक है, आपको एग्जाम को समझना जरूरी है. करिकुलम से पहले आपको एग्जाम को समझना जरूरी है. एग्जाम क्या चाहता है, देन यू नीड टू प्रोसीड अकॉर्डिंगली. देयर आर स्टूडेंट्स जो बोलते हैं मैम फर्स्ट डे से हम लक्ष्मीकांत पढ़ लें. अगर आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी पहले आपको एनसीईआरटी पे कमांड होना चाहिए. एक्स्ट्रा आपको एडवांस करिकुलम भी पर भी आप तभी जाएंगे. आपके प्रोग्राम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप स्टेप बाय स्टेप इस प्रिपरेशन में जाएं, रादर देन आप इधर से उधर जंप लगाएं. ठीक है, एंड दैट इज नॉट गुड. So there has to be a fine balance, and the example is there in front of us. And apart from her, there are lot many examples where the aspirants, they started preparing in the final year of their preparation or third year of their preparation, and they are able to crack this exam with a very good rank. Fine. Okay. So first of all, let me tell you, give you a brief about what UPSC is all about. I hope all of you must be clear what Prarambh is all about. Speak in Hindi. अच्छा, okay. हाँ ठीक है, I'll try to speak in Hindi. I guess यहाँ तक सबको चीजें क्लियर होंगी. Okay. PW modules versus standard books, which one to follow? आप डेफिनेटली यूपीएससी वाला बुक और जो एनसीईआरटी वाला बुक्स है आप उन पे रिलाय कर सकते हैं. उनको डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है दैट इट विल केटर द डिमांड ऑफ यूपीएससी. और लीगल बुक को व्हेन इट कम्स टू लक्ष्मीकांत और एनी अदर बुक, उसको डिकोड करना इज नॉट दैट इजी. कंटेंट टीम ने अपना काम करके दिया है, दे आर मोर देन इनफ. ठीक है, तो आपके लिए जब आपको यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है, इट इज जस्ट दैट कि आप अगर किसी चीज पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो पूरा ट्रस्ट करें. आप अपना 100% दे, यहाँ से आपको 100% मिल रहा है. ठीक है, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. आप इस
एग्जाम के लिए कि आपको जो कंटेंट मिला है आप उसको यूटिलाइज करके ऑप्टिमम रिजल्ट किस तरीके से लेकर आ सकते हैं विद इन द बेस्ट पॉसिबल टाइम, दैट इज रिक्वायर्ड है। ठीक है, इस एग्जाम का डिमांड ये है। ठीक है, ओके। ऑप्शनल की प्रिपरेशन, somebody was saying something about optional. Ma'am, I am from commerce background. Is it a weak point for preparation? Who told you? यूपीएससी ने लिख के दिया है क्या? Nothing like that. You should be a graduate with 33% of marks. That's it. UPSC never bothers about whether you are an IITian, whether you have passed your graduation from this college or that college. One should be a graduate with 33% of marks. That's the only criteria. रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, तो रिजर्वेशन में आपको वहां से स्पेसिफिक गाइडलाइंस थोड़ी मिली है। अभिनव, दिस इज नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट ऑप्शनल, right? This is not the time to think about optional. This is the time where you understand what UPSC is all about and you need to think about the NCERTs. मेंटरशिप के लिए आपके ऐप में, जैसे ही आप अपने ऐप में लॉग इन करेंगे, माय बैचेस में जाएंगे, लेट स्टडी पे क्लिक करेंगे, ऑल क्लासेस के नीचे एक आपको ऑरेंज कलर का बैनर मिलेगा, रिक्वेस्ट टू कॉल बैक। आप जैसे ही उस फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आप उस फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यू विल बी गेटिंग अ फॉर्म एंड यू कैन शेड्यूल अ कॉल फ्रॉम द मेंटरशिप टीम। Okay, moving forward. So what UPSC CSE is all about? It is the civil services examination जो UPSC conduct करता है for all India services, Group A or central services, Group B or state services. Okay, moving forward. जो हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज है उसके अंदर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 सर्विसेज आती हैं। एंड देयर आर वेरियस सेंट्रल सर्विसेज। ओके, देन इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस एंड सो ऑन। ये आपकी सेंट्रल इंडिया ये जो सर्विसेज है। ठीक है, further there are more services like Indian Revenue Services, Indian Railway Protection Force, Indian Trade Services and so on. ठीक है, further there are state services as well, you can take a look upon, and I think all of you must be aware about this as well. Now एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करते हैं। आई गेस यहां तक सबको सब चीज क्लियर है। बिफोर आई explain you the pattern of this examination, I hope yahan tak sabko sab cheez clear hai. Someone is saying ma'am I can't understand. kya samajh mein nahi aa raha hai? Ma'am I'll give my first attempt in 2029 is Prarambh 2028 perfect for me. हाँ ठीक है आपका, हाँ no issues, no issues. Teacher will also cover books like M. Lakshmikant and Spectrum. They will cover the syllabus of UPSC. UPSC का syllabus cover किया जाएगा। Ma'am I change my medium, so हाँ ठीक है, आप mentor call request कर सकते हैं। Does 12% matters in UPSC? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं लिखा हुआ है क्या you should be topper? आप 12th क्लास में टॉपर हो सकते, ऐसा लिखा हुआ है UPSC में? नहीं ना, this is all myth. Okay. Yes, you can choose according to your preference. इग्नू BA ग्रेजुएशन मैंने पहली बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, स्टूडेंट्स के बीच में ये कॉमन मिथ होता है कि आपको यहां से ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए, नथिंग मैटर्स। आप यूपीएससी के प्रिपरेशन में यूपीएससी को समझ के किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, दैट मैटर्स द मोस्ट। आपकी परफॉर्मेंस प्रीलिम्स के स्टेज पे, जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, ठीक है, आप उसकी कट ऑफ क्लियर करते हैं नहीं, वो मैटर करता है। मेंस में आप एग्जाम को समझ के किस तरीके से एग्जाम लिखते हैं और उसकी कट ऑफ क्लियर करते हैं, दैट मैटर्स द मोस्ट। ग्रेजुएशन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है आप किस, हाँ, लेकिन जहां भी आप जिस भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन कर रहे हैं आपको वहां की नॉलेज होनी चाहिए, दैट मैटर्स द मोस्ट। कौन सा आपका कॉलेज है, कहां से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं या फिर आप यू नो यू आर डेज आप रेगुलर अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हार्डली एनीथिंग क्रिएट डिफरेंस। आप जिस डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन कर रहे हैं आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, दैट्स इट। उसके अलावा आप यूपीएससी का सिलेबस खुद बहुत वास्ट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट।
Somebody is saying, can I prepare for state PCS? हाँ, अगर आपका state PCS और UPSC का यहाँ पे अभी सिलेबस अलाइन है तो आप डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग सबकी एनसीईआरटी से होती है, तो अभी आपको उन सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अभी एनसीईआरटी के बारे में सोचिए। यूपीएससी वाला बुक इनफ है नहीं है, आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, ठीक है, इस सेशन में ही मैं 2 से 3 बार बता चुकी हूँ, दे आर मोर देन इनफ। ओके ओके, नाउ लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। देखिए guys, please stop annotating, please stop annotating. Okay, so now let me explain you the examination pattern. Exam is conducted in 3 stages: prelims, mains, and interview. Fine. The very first stage is prelims examination, where there are 2 papers: GS1 200 marks and GS2 200 marks. When it comes to GS2, which is called CSAT, Civil Services Aptitude Test, it consisted of 80 questions from English, maths, and reasoning. 80 question into 2.5 marks each, making it to 200. And this exam is qualifying in nature. Qualifying as in, you need to secure 66.66 out of 200. Your prelims cutoff is solely based upon GS1, fine, and your CSAT exam is merely qualifying in nature. When it comes to, and there is a negative marking of 1/3 as well, 0.83. Fine. Now, guys, please stop annotating. How many times do I need to tell you? You are here preparing for UPSC. I think you should behave like a mature individual. When it comes to GS1, there will be 100 questions of 2 marks each, making it to 200, having 1/3 negative marking. It consists questions from subjects like history, polity, geography, economy, general science, environment, current affairs. IR is a part of current affairs. So subjects like history, polity, geography, economy, environment, we are going to ask, the commission is going to ask the questions from these subjects, and one should have a basic knowledge and and you must have solved well, somewhere around 50 to 70 set of papers before getting into the actual exam. Sir, please remove these kind of students from the session itself. Sir, please remove them. So, cutoff is, as I said earlier, cutoff is calculated on the basis of GS1 and GS2 is qualifying in nature. I hope I have made myself very clear when it comes to the very first stage of your exam, that is prelims. Okay. Now, moving forward, the next stage is of mains. As prelims is entirely objective in nature, and the questions, they will be in the form of multiple choice question, where for a particular question you will be getting 4 options and you need to pick the correct one. But when it comes to mains, it is entirely subjective in nature. You need to write answers. When it comes to essay paper, you need to write essay within the word limit of 1000 to 1200. Okay, and this is of 250 marks each. When it comes to GS paper 1, it consists of subjects like modern history, art and culture, post-independence, world history, Indian society, and geography. The paper will be consisting of 20 questions. There will be both 10 marker and 15 marker. 10 marker questions you need to answer within the word limit of 150 words. And 15 marker question, you need to answer within the word limit of 250 words. Fine. So this is what paper 1 is all about. Let me tell you the subjects of paper 2. In paper 2, we have polity and constitution, social justice is there, governance is there, and international relations. Same, 20 questions. When it comes to GS third, environment is there, economy is there,
disaster management, internal security. Subjects like this, they are covered in GS paper 3. And when it comes to GS paper 4, it's like ethics, integrity, and aptitude. Because UPSC want to test, you are going to hold a very key position and you will be responsible to maintain the administration of a particular district. Whether you have those values, कि आपके पास वो values है कि आप इस एग्जाम को, आप अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं, वो जानने के लिए UPSC has introduced this exam called ethics, integrity, and aptitude. Same as 250 marks. Okay. I'm so sorry. Now comes optional. अभी कुछ स्टूडेंट्स ऑप्शनल के बारे में बात कर रहे थे. अभी ये GS यहां तक क्लियर है? आई गेस सबको क्लियर होगा. GS के जो आपके पेपर्स हैं वो सबको क्लियर होंगे. क्लियर? ठीक ठीक. ओके. Out of well-defined list of, I guess, round about 28 subjects, आपको एक सब्जेक्ट ऑप्शनल चूज करना होता है. सपोज आप एक सब्जेक्ट चूज करते हैं सोशियोलॉजी. आपके दो पेपर्स होंगे, सोशियोलॉजी पेपर 1 एंड सोशियोलॉजी पेपर 2. ये आपको 250 मार्क्स ईच. ठीक है. ऑप्शनल कब चूज करना है? जब आप अपने बेसिक्स कवर कर लें. एडवांस करिकुलम में भी आप एटलीस्ट 3 से 4 सब्जेक्ट्स कवर कर लें, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है. उसके बाद आपको ऑप्शनल चूज करना. ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी मेंस. एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है यूपीएससी मेंस का. उससे पहले ऑप्शनल चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको ध्यान में रखना है कि किस किस तरीके से आपको ऑप्शनल चूज करना है, बट कब करना है अभी एज ऑफ नाउ वो मैंने आपको बता दिया है. जब आपका बेसिक्स कवर हो जाए, जब आप अपने एडवांस करिकुलम में भी एटलीस्ट 3 से 4 सब्जेक्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और इंडियन सोसाइटी, आप इतना कवर कर लें, तो यू विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है और आप कौन से ऑप्शनल को चूज कर सकते हैं. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर. यहां तक क्लियर होगा सबको? क्लियर? हाँ हाँ उज्जवल, यू कैन डेफिनेटली, यू कैन ड्रिंक वाटर. यू आर नॉट इन जेल, यू आर इन सेशन, यू कैन ड्रिंक वाटर, नो इश्यूज. ओके. Now, moving forward, the next and the final stage is the personality test. Okay. So what personality test is all about? बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये मिथ होता है कि वहां पे आपसे सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट यहाँ पे आपका जो नाम ही पर्सनैलिटी टेस्ट है, सिर्फ आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ना पूछ के आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. They try the kind, they want to test the kind of person you are. आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, आप उसके लिए कितने केपेबल हैं, how well you will be able to present yourself, how well you will be able to understand the situations. Because कभी भी अगर कोई unforeseen situation आती है and there the admin, the bureaucrat, they need to act instantly. तो वहां पे आप किस तरीके से आप वहां एक्ट करेंगे, वो सब चीजें वहां पे पूछी जाती हैं. ठीक है. और वहां पे देखा क्या जाता है, मतलब पर्सनालिटी टेस्ट के बेसिस के पैरामीटर्स क्या होते हैं? मेंटल अलर्टनेस, हाउ अलर्ट यू आर. ठीक है. आपके डिस्ट्रिक्ट में वहां पे अगर आई सेड की फ्लड जैसी सिचुएशन है या कहीं पे फायर ब्रेकआउट हो गई है, तो यू कैन नॉट वेट कि ठीक है आज नहीं कल देख लेंगे. नथिंग लाइक दैट. यू नीड टू बी अलर्ट, at the very first moment, at the very, first instance. वही चीज आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट में देखी जाती है. पावर्स ऑफ assimilation, how well you assimilate yourself. क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन. आपको वहां पे बेस्ट जो है उस टाइम पे, उस मोमेंट पे जो मैक्सिमम पीपल के लिए बेस्ट है, आपको वो डिसीजन लेना होता है. एंड दैट हैज टू बी बैलेंस, राइट. वेराइटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट. आपको सिर्फ अपना इंटरेस्ट नहीं देखना है. यू आर गोइंग टू बी सिविल सर्वेंट. ठीक है.
So you need to understand that you are here to serve the people, और आपको उनको ध्यान में रख के ही अपना डिसीजन लेना है. एबिलिटी फॉर सोशल कोहेशन एंड लीडरशिप. आप जो भी डिसीजन ले, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्विंस कर पाए, ठीक है, और आप उनको ये समझा पाए कि ये उनके वेलफेयर के लिए है. दैट इज व्हाट द इंटरव्यू बोर्ड लुक्स इन फॉर एस्पिरेंट्स, राइट? इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटेग्रिटी, इसके बिना कुछ नहीं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया व्हेन इट कम्स टू द पर्सनालिटी टेस्ट. और जब भी आप प्रिपेयर भी कर रहे हैं, आपको ये सारी चीजें, कमिटमेंट, आपकी खुद की पर्सनालिटी में आप एक कमिटमेंट होना चाहिए. अब कमिटमेंट किसी और से नहीं, अपने से कमिटमेंट, कि आज अगर मेरा इतना टारगेट है तो मुझे इतना टारगेट कंप्लीट करना ही है, ठीक है. वन शुड बी लॉयल. इधर उधर लॉयल्टी नहीं ढूंढनी है, वो मिलती नहीं है. यू शुड बी लॉयल टू योरसेल्फ. यू शुड बी लॉयल विद दिस एम, आप जिसके लिए यहां पर आए हैं, ठीक है. दैट मैटर्स द मोस्ट. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड. What are the essential demands of UPSC? Though I have already explained you that you need to understand basics and all that. But first of all, let me tell you few more demands. First of all, most important thing when it comes to UPSC, ये मेरा सबके लिए सजेशन है. आप जहां भी अभी बैठे हुए हैं, जो भी आपका स्टडी एरिया है, आप सबसे पहले जो सामने वॉल है वहां पे यूपीएससी का सिलेबस पेस्ट कर लीजिए. सपोज करो आप आज 9 बजे से पढ़ने बैठ रहे हैं, सुबह 9 बजे से या रात को 9 बजे से. जो फर्स्ट 15 मिनट्स होंगे आपके, आप अपने रोज अपने सिलेबस को गो थ्रू करेंगे. दिस शुड बी इन अ हैबिट. यू शुड बी इन अ हैबिट ऑफ डूइंग दिस. जब आप इसको, इस एक्सरसाइज को एक या मतलब कमिंग फॉर 1 और 2 मंथ जब आप कंटिन्यू करेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है. और फिर जब आप अपने आसपास जो भी पढ़ रहे हैं, यू विल बी एबल टू कनेक्ट कि आप क्यों पढ़ रहे हैं. और उसके बाद अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर न्यूज का कॉन्टेक्स्ट क्या है. तो मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, जब भी आप पढ़ेंगे आपका फर्स्ट 15 मिनट्स इसी चीज को जाने चाहिए कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है. आपको सिलेबस समझना, ठीक है. यूपीएससी का सिलेबस आपको ये बताता है व्हाट टू रीड. जब आपका बेसिक्स खत्म हो जाएगा, जब आप, गाइस प्लीज स्टॉप एनोटेटिंग. व्हाट डू यू वांट? यू वांट मी टू एंड दिस सेशन abruptly? This is not appreciable at all. And shall take your doubts in the end. Kindly be patient. Okay. So when it comes to PYQs, after completing your NCERT, when you are going to head towards the advanced curriculum, पहली बार आप पूरा जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, आप थ्रू आउट अपने नोट्स के थ्रू, सपोज कीजिए आपको क्लास में पॉलिटी खत्म हो गई है, पहली बार आप पॉलिटी कवर करेंगे पूरा क्लास के साथ. अपनी बुक्स पढ़ेंगे. बुक्स में आप अपने नोट्स बनाने के बाद, जैसे सपोज करो आज आपने एक टॉपिक पढ़ा है प्रीएम्बल, आपने क्लास के साथ अपने नोट्स बना लिए हैं. सेम टॉपिक को फिर आपको बुक में पढ़ना है और बुक में सिर्फ वही स्टफ हाईलाइट करना है जो आपके नोट्स में नहीं है, ठीक है. जब आप नेक्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम किसी सब्जेक्ट को आप रिवाइज करने जाएंगे, आप पहले पीवाईक्यूज को देखेंगे. पीवाईक्यूज को देख के आप एग्जाम की डिमांड समझेंगे, ठीक है. सीधा सीधा यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था, द माइंड मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच वन ऑफ देम? डीपीएसपी, प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स. उसका आंसर प्रीएम्बल था. तो यूपीएससी इस बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है. 2017 में उसने एक क्वेश्चन पूछ दिया था कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 4 एग्जाम्पल देके कौन सी लिबर्टी नहीं है. ऑप्शन बी था कि इकोनॉमिक लिबर्टी प्रीएम्बल में नहीं है.
तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको किस तरीके से किस डेप्थ तक एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है। राइट टू प्रिवेसी आर्टिकल 21 यूपीएससी बहुत बार पूछ चुका है, पिछली बार भी पूछा था राइट टू प्रिवेसी कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 21। ठीक है, सो व्हाट इज रिक्वायर्ड कि आप जब एक बार पूरा सिलेबस समझ लें, जब सेकेंड टाइम आप वहां पे उसके रिवीजन के लिए जाएं, तो आपको पता होना चाहिए किस डेप्थ तक अब आपको पढ़ना है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ अब आपको कहां पे फोकस करना है, उसके लिए आपको पीवाईक्यूज हेल्प करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ रिवीजन एंड प्रैक्टिस वो आपको करनी है, जो आपके डेली टेस्ट होंगे अभी, जहां आप डीपीपी और डीएमपी लिख के आप वो करेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद जो वीकली टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट में आपको कॉपी बनानी है, सबके पास एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें आप ये लिखेंगे आपके वीक एरियाज क्या है, आप उनको रिवाइज करके ही अपनी मंडे की क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आज अगर आपने टेस्ट में परफॉर्म किया है, एक जब आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी मार्क्स इतना मैटर नहीं करता है, आपको किन टॉपिक्स को दोबारा से समझने की जरूरत है, वहां पे टाइम डिवोट करने की जरूरत है, दैट मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। दीज आर सम essential demands when it comes to UPSC. I hope I have made myself very clear. ठीक ठीक है, ठीक, ओके ओके। Moving forward, how to plan and execute. This is the BAP strategy. B stands for basics, A for advance, R for revision, P for practice. 50%, 50। पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस मैटर्स द मोस्ट। इसीलिए आपको राइट फ्रॉम द डे वन यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक, एक टाइम पे आपको यहाँ पे मार्क्स के बारे में नहीं सोचना है जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि मार्क्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, लेकिन पहले आपको अपने वीक एरियाज पे काम करना है। और अभी आप देखेंगे जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स को पॉलिटी अच्छी लगेगी, कुछ स्टूडेंट्स को ज्योग्राफी अच्छी लगेगी, कुछ स्टूडेंट्स को हिस्ट्री में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो जो भी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप कंफर्टेबल हैं, मेक श्योर दैट कि वो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आपसे नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन एज इन आपके करिकुलम से। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे कि हर किसी को ज्योग्राफी उस लेवल पे समझ में नहीं आएगी या पॉलिटी नहीं समझ में आएगी, बट ऑल यू नीड टू डू कि आपको एक सब्जेक्ट को इतना समझना है, अगर आपका कोई वीक एरिया भी है और वहां से अगर 8 क्वेश्चंस भी आते हैं, तो यू नीड टू डेवलप सच काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप वहां से यू शुड बी इन अ पोजिशन टू सॉल्व एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस। राइट, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ, आई टेक योर डाउट्स इन द एंड। क्लियर है? उमेश, क्या डाउट है आपको, बताइए। संजना इज सेइंग हाउ टू एनालाइज पीवाईक्यू। आपको यहाँ पे पीवाईक्यू एनालिसिस के भी सेशन लिए जाएंगे, मेंटरशिप से आप अपना कॉल शेड्यूल करके भी हाउ टू एनालाइज पीवाईक्यूज, किस डेप्थ तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आपको वो यहाँ पे कंप्लीट करा दिया जाएगा, बट एज ऑफ नाउ अभी आपको इन सब चीजों के बारे में ना सोच के सिलेबस प्लस एनसीईआरटी पे फोकस करना। हाँ शुभ, मटेरियल इनफ है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मटेरियल इज मोर देन इनफ। यूपीएससी की डिमांड को ध्यान में रखे और यूपीएससी के करिकुलम को ध्यान में रख के आपका जो सिलेबस है, यहाँ पे जो भी आपका स्टडी मटेरियल है वो डिजाइन किया गया है। नित्या, आपके ऐप में ऑप्शन है मेंटरशिप का, आपके ऐप में ऑप्शन है। जब तक प्रॉपर आपकी क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है, आप अपने से एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। जब तक आपका 18 तक ब्रिज कोर्स है, आई वुड रिकमेंड यू दैट यू कैन स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी वाला ऑन योर ओन, any of the subject of your choice.
Okay. Regular class schedule it will be uploaded post 18th of June. Till 18th, we have already uploaded this planner for bridge course. Oh. Now, we have the wall of toppers with us. इस साल के result में. At the end, I just want to tell all of you that these are all of them, they stands testimony for the same. कि UPSC की जर्नी मैं यहाँ पे हार्डशिप्स फेस करके और यूपीएससी की जर्नी को किस तरीके से एक एस्पिरेंट से एक टॉपर की जर्नी इन्होंने तय की है. नेक्स्ट कैन बी यू. सो आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी to be focused into this preparation of yours. Understand the demand of question and be regular with this preparation. Consistency is the key. आज 16 घंटे पढ़ना, कल 2 घंटे पढ़ना, उसके बाद बिल्कुल नहीं पढ़ना. This is not the requirement of this exam. ये मैं हर बार बोलती हूँ. ठीक है. Consistency is the key. आप अपने टारगेट्स पे स्टिक रहिए. ठीक है. भले ही आप छोटा टारगेट बना के चलिए. ठीक है. टारगेट पे स्टिक रहिए. That matters the most. And apart from this, जो भी आपको डाउट होता है, mentorship team is there to help you out. You can reach to them. You just need to fill the form and you can schedule a call along with the mentors. Fine? Okay. So, thank you from my end. And right now I'll be taking your doubts. Okay? So, sir, एक बार please doubt session के लिए students को open कर दीजिए. Any book related query, SST team is going to help you regarding this. Any of the preparation related doubts you can ask me in this session. मैम गाइस एक बार प्लीज आप लोग जिसको भी डाउट है एक बार हैंड रेज कर लीजिए. 1 by 1 वी कैन रिजॉल्व योर डाउट्स. मैम आप एक बार स्क्रीन जो है बंद कर दीजिए अपनी सो दैट दे कैन नॉट एबल टू एनोटेट आल्सो. Fine, sir. Ma'am, hello. हाँ नित्या. Yes, ma'am, I have a doubt. Actually, ma'am, I am from science background. मेरी plus 2 ना PCB से हुई है and I want to pursue UPSC. और मैम जैसे अभी ब्रिज कोर्स चल रहा है ना, तो मेरे ऐप पे ना मेंटोरशिप का ऑप्शन नहीं आ रहा. आई गेस आफ्टर ब्रिज कोर्स से मेंटोरशिप का एक्सेस होगा. You can mail towards, आप एक मेल कर दीजिए support@pw.live. मैम मैंने किया है मेल बट मुझे ना कोई रिवर्ट नहीं आया. Okay. Yes, it will be taken care of. Nothing to worry about. एंड मैम मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि बीए में ना, जैसे मैंने सुना है, मतलब मुझे नहीं पता, जैसे 6 से लेके +2 तक की हिस्ट्री आती है, तो कॉलेज में जैसे मैंने बीए परस्यू करना है तो मैं कौन कौन से 3 कोर सब्जेक्ट्स लूँ. जैसे हिस्ट्री ले सकती है, कॉलेज की हिस्ट्री और यूपीएससी की हिस्ट्री अलग अलग तो नहीं होगी? मतलब वहां पे मैं एंशिएंट पढ़ रही हूँ, आनी पोस्ट है, तो ऐसे तो नहीं कोई दिक्कत? ऐसा नहीं है. पोस्ट इंडिपेंडेंस मेंस में आता है. एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री प्रीलिम्स का पार्ट है. यस मैम. हाँ, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. और मैम मतलब आप अगर मुझे गाइड करना चाहो तो 3 कौन कौन से सब्जेक्ट मतलब लेने चाहिए जो यूपीएससी की? आप पहले अपने इंटरेस्ट एरिया को देखो, आप कहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल हो. यहाँ पे तो आपको सिलेबस पूरा पढ़ना ही है. आप पहले यही आप ब्रिज कोर्स को आप थोड़ा सा सीरियसली लेके आप ये देखो, अपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट को पहचानो और उसके बाद आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करो. ओके मैम. वैसे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जैसे ये दो तो हेल्प करते ही होंगे ना, अगर हम कॉलेज में भी पढ़े साथ साथ में कोचिंग तो हम जहाँ पे करिकुलम ओवरलैप करेगा वहां आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा ही करेगा. ठीक है. और देयर आर स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो उनको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आर्ट स्टूडेंट्स वाले जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एक एज है. आप सबको यहाँ पे बेसिक से ही पढ़ाया जाएगा. आप सबको की अंडरस्टैंडिंग उस तरीके से डेवलप करी जाएगी, तो इसके बारे में आपको कोई बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं. ओके मैम. थैंक यू मैम सो मच. वेलकम. you're welcome. या वंशिका, यस प्लीज. जिसका भी डाउट रिजॉल्व हो जाएगा, जस्ट प्लीज रेज डाउन योर हैंड्स. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ वंशिका बोलिए. मैम मुझे ये डाउट था कि जैसे एनसीईआरटी के लेक्चर्स भी आएंगे या हमें खुद ही कवर अप करनी है? एनसीईआरटी लेक्चर्स विल बी देयर. क्या कह रहे हो? एनसीईआरटी लेक्चर्स विल बी देयर. अभी तो आपका ब्रिज कोर्स चलेगा ना 18 जून तक. हाँ जी ठीक है. यस आदित्य. Aditya, are you there? Good evening, ma'am. Good evening. Wait. Prasad is talking right now, right? Yeah. Yes, Prasad, wait for a minute. Aditya, you have raised your hand. Are you there? Yes, ma'am. Yeah, yes, please, Aditya. Prasad, you just wait for 2 minutes. Yes, please.
मैम ये वो एक एनसीईआरटी समरी करके ये आया था, डिलीवरी आया आपका था, तो वॉइस उसको नहीं आ रहा करना है, कैन यू प्लीज बी अ लिटिल लाउड? हम एक एनसीईआरटी का ये आया था, समरी बुक आया था, तो समरी उसको कहाँ पढ़ पे? के क्लास 6 से 12 ले लूं। अच्छा, जो आपको मिला है वो एनसीईआरटी वाला की बात कर रहे हो आप? उसको हाँ। यूपीएससी के करिकुलम को यहाँ पे ध्यान में रख के ही डिजाइन किया गया है। क्लास के साथ जब आप क्लास करेंगे और उसके बाद आपको एनसीईआरटी वाला पढ़ना है। अभी आप चाहें तो आप एनसीईआरटी समरी से एनसीईआरटी वाला से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपको क्लास देखनी है, क्लास के साथ नोट्स बनाने हैं, उसके बाद आपको एनसीईआरटी वाला पढ़ना है। तो मतलब वो खरीदने का जरूरत नहीं है? थैंक यू मैम। यस प्रसाद। मैम मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी वाला के जो जो बुक्स है वो लाइक पढ़ना चालू कर दिए सब्जेक्ट वाइज। सो इज हाँ वही पूछना था कि इज इट बेटर टू कवर डिफरेंट सब्जेक्ट्स और जस्ट टू स्टिक वन सब्जेक्ट अंटिल इट्स completely over? It depends upon the number of hours which you can devote in a particular day. How many hours you devote on a daily basis? Like around 6 hours because this is my semester exam going on, so I have time. You can go for two subjects at a time. You can go for polity and modern history simultaneously. What are you reading as of now? As of now, science and tech and history, modern history, geography. Fine, fine. Science and tech and modern history. It's fine. Okay, ma'am. And another doubt was this, that I just read few chapters of Indian society and polity. So the But language of the NCERT, I didn't understand it quickly. So I also referred to YouTube of PW Only IAS lectures, but they were like quite long lectures of that. So how can I do that specific chapters? there is no point of there is no point of watching lectures as we are going to conduct the lectures in your batch itself. Right now, I just want you to please stop sharing. Please stop sharing your screen. Right now, you just complete two subjects till 18th of June by the time your course starts. Okay. And after that, what we are going to conduct the lectures and each and everything will be clear. Do not scatter your preparation कि ये वाला subject भी start कर दिया ये वाला. कोई दो subject आप पहले से prepare करके रखो. That is what matters the most. तो मैम जैसे लेक्चर्स होंगे हमने हमारे हाँ तो हाँ वो लाइक डेली डेली बेसिस पे हाँ. डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स होंगे Two तो subjects in a day. हाँ तो वो भी लाइक स्कैटर टाइप में नहीं हो जाएगा? नहीं, दो सब्जेक्ट्स ही आपको पढ़ाए जाएंगे, पहले उन दोनों को खत्म किया जाएगा, फिर आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा. ओके ओके मैम फाइन. ओके थैंक यू मैम. You're welcome. Yes, Aman. ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ ਮੈਮ। Good evening, Aman. Yes, please tell me. ਮੈਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ 2028 ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣੀ Dear, ਕਿ can ਸੈਪਟੈਂਬਰ। you please speak in Hindi? I'm not very good at Punjabi. थोड़ा बहुत समझ में आता है बस. हेलो हाँ हाँ अमन बोलो. मैम हिंदी। मैम मतलब जैसे कि ना मेरे 2028 में मेरे एग्जाम है मतलब सेमेस्टर एग्जाम जो मेरे लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम है वो ना सितंबर में है। अगर हमारा जो मेंस है वो अगस्त में होता है तो मैं क्या कहते हैं मेंस के एग्जाम में सिट कर सकती हूँ नहीं, वहां बिकॉज पे तक. इंटरव्यू से पहले डिग्री मिल जाएगी। हाँ नहीं, इंटरव्यू का नहीं, आपको मेंस में बैठने से पहले आपको डिग्री चाहिए, लेकिन आई गेस अभी भी कुछ इस साल भी रूल्स में चेंज हुआ है, तो आपको भी इस चीज के बारे में यू नीड नॉट टू वरी. उसके बारे में आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं. मैम अगर मैंने ना +2 मैंने पीसीएम से की है आफ्टर दैट सम प्रॉब्लम्स के कारण मैंने डिस्टेंस से कर रही हूँ बीए डिस्टेंस से तो इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है कि मतलब। एब्सोल्युटली नो इश्यूज, बट जो आपके सब्जेक्ट है उसमें आपकी कमांड होनी चाहिए. जो भी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है आपको आना चाहिए. और मैम फिर हम लास्ट टाइम पे जैसे कि हम घर पे ही सारा दिन प्लान करते हैं बिकॉज वी आर ओनली स्टिक टू प्रिपेयर यूपीएससी सो देर इज हमें और भी चीजों में पार्टिसिपेट करना चाहिए सो मैम कह रहे थे ना हमारे ब्रिज कोर्स में कि तुम्हें कॉलेज आना चाहिए मतलब दिस थिंग इन माई माइंड. हाँ, वो मैं आपकी बात समझती हूँ, बट उसी को कैटर करने के लिए यहाँ पे आपकी स्किल्स की क्लासेस यहाँ पे सैटरडे को कंडक्ट की जाएंगी.
आपके पीयर लर्निंग सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे जहां पे आपको एक टास्क दिया जाएगा, आपको वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करना होगा, तो दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। तो यू शुड नॉट फील लेफ्ट आउट कि कॉलेज जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। दैट इज व्हाट दिस एग्जाम इज नॉट, दिस प्रिपरेशन इज नॉट ऑल अबाउट, दैट you need to take care of the academic front as well. So we are going to take care of that. Nothing to worry about. Okay, ma'am. Okay, okay, dear. Okay. Kuldeep, yes, please tell me, what is your doubt? Kuldeep, Good evening, ma'am. good evening, good evening. Yes, please tell me. Ma'am, actually, I just passed out class 12th, and I am a teacher also. Okay. तो टाइम को कैसे मैनेज करें वो थोड़ा आप बता दीजिए. How many hours in a day you can devote for UPSC? 6 hours. Okay. 3 hours you can devote to the class. Okay. Right now your bridge course is going on. 3 hours, because we are going to take the classes of 1.5 hour each. So 3 hours should be dedicated to the class. Okay. 1 hour should be dedicated to the revision, 1 or 1.5 hour. That makes it to 4.5. And upcoming 1.5 hours should be devoted to the revision and practice, not revision, practice. This is how you can plan your 6 hours in a day. Okay, ma'am. And one thing, ma'am. But जो मेंस की जो सिलेबस आप बताएं उसमें लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग होता है, तो उनका सिलेबस कैसे होगा वो नहीं समझ. वो अभी आपको, you don't have to worry. अभी आप at the very first stage हैं, you are in the very first, we are in the nascent stages. वो बाद में आपको lectures दे दिए जाएंगे, आपको cover करा दिया जाएगा. अभी के लिए all you need to think about NCERT only. और मैम यूपीएससी बीए डिग्री वाला प्रोग्राम में मैंने इनरोल किया है, तो बीए की क्लासेस होंगी या नहीं के लिए होंगी आपको WhatsApp ग्रुप में ऐड कर लिया गया होगा, वहां से आपको सारी डिटेल्स मिलेगी. ओके मैम, थैंक यू मैम. You're welcome. Next one is Oppo CPH2643. Ma'am, good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, we have to get it that hard copies of NCERTs. How to get hard copies of NCERT? नहीं मैम, वो ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है मैडम. वो NCERTs वही बस होता है क्या, दूसरे और लेना पड़ता है क्या मैम? नहीं, you don't have to purchase any of the NCERTs apart from the NCERT वाला booklets. हाँ, वही अब स्टार्ट करनी है मैडम. मैं तो बेसिक्स भी नहीं मालूम है मैडम, वो पढ़े तो समझ में आ जाएगा ना वो. हाँ, डेफिनेटली आप क्लासेस के साथ बुक्स पढ़ेंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर. ओके मैडम, हाउ कि आप टाइम को कैसा मैनेजमेंट करिए मैम, कॉलेज सेक्शन से और ये यूपीएससी वाला सेक्शन से. अब आपकी ये क्लासेस स्टार्ट होंगी, आप एक बार मेंटर कॉल रिक्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है? आपको हाँ. यहाँ पे जो भी आपका अवेलेबल टाइम होगा, आप मेंटर से अपना एक सजेस्टेड प्लान ले सकते हैं. दे विल हेल्प यू. मैडम, मैं पॉलिटी के लिए सब सारे लोग क्या बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत से रिफर करना है बोलते हैं मैम. जो पीडब्ल्यू वाला बुकलेट आपको वो समझ में आए तो हो That is जाता ना more मैडम. than enough. I have told you, in this session, I have explained more than thrice or 4 times that the books which we are providing you, they are more than enough. वो यूपीएससी के सिलेबस और यूपीएससी के डिमांड को ध्यान में रख के ही डिजाइन की गई. ओके मैडम, थैंक यू मैम. You're welcome. Avni, yes, please tell me, what is your doubt? Good evening, ma'am. Good evening, dear. Ma'am, I wanted to ask a doubt regarding the mentorship call. So while we make a mentorship call, do we get like a single mentor throughout our journey, or does the mentor keep on changing? What is the exact process, ma'am? Dedicated mentors will be allotted to you after some time. And there will be 2 mentors. One will be your primary mentor, one will be your secondary mentor. Okay, thank you, ma'am. That was the doubt. Yeah. Okay. Okay. Then thank you all. Thank you for the session. Due to paucity of time, I have to wind up the session. We'll take all your the remaining doubts in the upcoming session. I hope all of you must have enjoyed this session. And at last, I just want to wish all of you all the luck. And, just prepare wholeheartedly with this preparation. We all are with you. Our mentorship team is with you. PW is with you throughout this journey of yours. Just prepare well and
Thank you. Thank you so much. Bye-bye. Best of luck.